Good evening, everyone. Let's start the session with our school song. It all just feels like a dream to me, to find a school so true. And I know it's all in make-believe when I picture a school like you. The one thing that I learned from you is that I can make my dreams come true. Someday when I wake up to find memories of Billabong in my mind, imagine how that could be. Imagine how that could be. T for teamwork, E for empowerment, and for mutual respect. B for passion, I for integrity, A for accountability. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, you can touch the sky. Billabong High, Billabong High. We have aspiration over ambition. In our minds we have rhythm, courage and humanity. What makes us Billabong High is we believe we can touch the sky. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, you can touch the sky. Billabong High, Billabong High, Billabong High, you know you can fly. Billabong High, touch the sky. A very good evening to everyone. I, Ibrahim Mansoor from Grade 3, welcome you all on the digital platform of Billabong Inspires Talk Series. On behalf of Billabong High International School, we would like to thank all the parents for their support and work towards our school. Billabong Inspires Talk Series initiative will bring together the working parents from various fields of expertise. They will share their life experiences, which will help motivate and inspire the students towards achieving their goals. BHIS strongly believe in the core values, which inform your thoughts, decisions, and actions and help you align your career or life path to what's important to you. They're the essential foundation in finding your life purpose because they remind us and others who we truly are. BHIS core values are diligence, hardworking, persistent, resilient, service, generosity, enterprise, charity, leadership, stewardship, compassion, kind, empathetic, humble, resourcefulness, creative, risk taker, dynamic, outward looking, commitment to a large community, a family, a belief system, cultural models, sustainability, environment, integrity, honest, trustworthy, modest, respectful. Billabong Inspires Talk series is all geared up today for an interesting and enlightening session with our guest speaker, Mr. Ankit Shukla, who will be taking us through his life journey. Mr. Ankit Shukla is the owner of Shakti Studio. This is their third generation of photography company. In this style of photography, they incorporate a modern style of imagery and a hint of photojournalism with creative portraiture. Shakti photography got started in 1948, and later the photography bug caught up with his mother, Mrs. Vishnu Lata Shukla. Soon and later, she became a full fledged event photographer, besides managing their studio, Shakti Studio. Thus, it became the chosen profession for his elder brother and him. Now, without much ado, we would like to welcome our guest speaker for the day, Mr. Ankit Shukla.
Hello, everyone. Hello, sir. Hello, Mansoor. How are you? I'm fine, sir. So, we would like to ask you a few questions related to your journey and to your work. Also, students can ask their questions by writing in the chat box. Okay. So, firstly, I would like to ask, how did you get good at photography and what gear do you use? Currently, I'm using the gear company of Canon. You know the name of company, Canon? Yes, sir. Okay. And how good I'm always trying to doing our best. हम लोग जो भी टीम को सर्च करते हैं या जो भी एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं, तो बेसिकली मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. हमने अपनी जो जर्नी थी वो 12 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी. मैंने फोटोग्राफी इंडिविजुअली 12 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी. तो फिर हमने क्या किया कि उसके बाद धीमे धीमे जब बहुत साल हमने इसमें दे लिए और हम जब खुद करने लग गए फोटोग्राफी, उसके बाद फिर हमने एम्प्लॉयमेंट हायर करना चालू किया. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम के लिए कि उसमें यंग जनरेशन जरूर ऐड हो. यंग जनरेशन की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो चीजें होती हैं, वो ज्यादा बेटर होती हैं. तो कहीं ना कहीं फिर हम लोगों ने उसको ऐड करके चीजें चालू करी. तो राइट नाउ आई हैव एम्प्लॉयमेंट जो फोटोग्राफी करते हैं और हम उन्हें इंस्पायर करते हैं, टेक्निकली साउंड करते हैं और टीच करते हैं कि कैसे आपको चीजों को इमेजिन करना है, क्रिएटिव चीज कैसे अपने अंदर एंटर करनी है शॉट लेते समय. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. So, what is the one thing you wish you knew when you started taking photos? I'm always thinking कि कुछ नया करना चाहिए. मतलब कुछ भी ऐसा जो हमने लास्ट किया हो, इस बार कुछ ऐसा करें जो हमने लास्ट नहीं किया हो और थोड़ा सा फ्रेशनेस बनी रहे. Thank you, sir. So when you go out to shoot, do you take any essential items other than a camera and lens? Yes, it's the most important thing is light. वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप जब भी कहीं जाते हो फोटोग्राफी करने, तो एक अगर आप डे में कर रहे हो तो आपको सनलाइट मिलती है, बट फिर भी आपको एक लाइट ऑप्शनल रखनी होती है ताकि आप लाइट का यूज कर सको. आपकी फोटो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो लाइट होती है. वही फोटो को अच्छा और बेहतर बनाने में हमें मदद करती है. तो इसलिए लाइट एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, मैं अपने साथ जरूर कैरी करना चाहिए. Thank you, sir. So which lens is your favorite and why? ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, सारे लेंस अपनी अपनी जगह अपनी अपनी वर्किंग करते हैं. बट फिर भी एक लेंस है दैट इज कॉल्ड 2470. इसकी 2470 का मतलब होता है रेंज होती है. ये 24 mm to 70 mm की ये रेंज होती है. और ये लेंस हमें वर्किंग करने में बार बार लेंस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है जब हम मल्टीपर्पज फोटोग्राफी कर रहे होते हैं. तो ये लेंस मेरा फेवरेट है, हम इसे ज्यादातर यूज करते हैं. Thank you, sir. So what kind of tools do you use for post processing? What's your workflow like? फोटोशॉप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टूल है जिसे हम लोग यूज करते हैं और बहुत सालों से यूज करते आए हैं. उसी के बहुत सारे सब ब्रांच हैं, जैसे लाइट रूम है, आफ्टर इफेक्ट है,
और भी बहुत सारे आते हैं। रॉ के अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, रॉ शूट हम लोग करते हैं, जो हमारी इमेजेस होती हैं वो हम लोग रॉ एक फॉर्मेट होता है उस पर शूट करते हैं। तो ये सारे टूल्स हम लोग यूज करके अपनी फोटोज को इनहांस करते हैं। Amazing. So why did you choose Billabong for your kids? एक्चुअली में बेलाबोंग जो मुझे लगा पर्सनली वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है पढ़ाई के प्रति, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज ना देकर थोड़ा सा क्रिएटिवली चीजों को समझाने की कोशिश करता है बच्चों को। दैट्स व्हाई हमने वहां को चूज किया कि हमारे बच्चे वहीं पढ़े। Thank you, sir. Sir, tell us, how do you organize, plan, and prioritize your work? सबसे पहले तो जब कोई भी हमारे पास डेट्स आती हैं किसी भी काम की, तो हम लोग पूरी प्लानिंग करते हैं कि वहां पर कौन कौन जाएगा, कौन कौन से गियर जाएंगे, क्या क्या इवेंट है, किस किस टाइम पर वहां पर पहुंचना है, कैसे करना है। उस सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं वो सब हम लोग प्लान करते हैं। फिर वो सारी चीजें हम लोग साइट पर लेकर पहुंचते हैं। और हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होती है एक्सप्रेशन कैप्चर करना। हमारे कोई भी मूवमेंट जो भी हो रहे हैं उसको लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उसके जो एक्सप्रेशन है वो हम कैप्चर कर पाए, ताकि उसको मेमोरीज में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके प्रेजर्व कर पाए उन लोगों के लिए, और वो उनको इंस्पायर याद करें कि हाँ इट्स गुड, कि हाँ मुझे इस तरह की मेमोरीज, हम उस समय ऐसे हंस रहे थे, ऐसे डांस कर रहे थे, ऐसे एंजॉय कर रहे थे वो मोमेंट, थ्रू माय लेंस वो लोग देख पाए। Thank you, sir. So, give us an example of when you thought outside of the box and how did it help you? आउटसाइड द बॉक्स तो ऐसे कोई थिंकिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए आइडिया, कि लास्ट कुछ भी किया है इस बार हम कुछ और नया क्या कर सकते हैं, वो थिंकिंग चलती है। मेनली ऐसे कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता है कि हम मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्या सोच ले रहे हैं या क्या कर ले रहे हैं। लेंसेज के थ्रू हम लोग बस ये थोड़ा सा क्रिएट करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं, हमारा जो विजन है वो एक नैरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, कि किस एंगल से कैसे हम वाइड एंगल लेंस यूज कर लें, कैसे हम जूम लेंस यूज कर लें, कैंडिड शॉट कैसे निकाल लें, थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट के जो लोकेशंस हैं वहां पर किस एरिया में जाकर कहाँ से हम शूट कर लें। इस तरह से चीजें हमें इंस्पायर करती है। Thank you, sir. So, among the photography gear that you've purchased, is there something you wish you hadn't brought? एज पर रिक्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ अगर मेरा वर्क थोड़ा सा कमर्शियल फॉर्मेट में होता तो मुझे जो पर्सनली गियर पसंद है वो है हेजल ब्लेड। एक कंपनी है जो बहुत पुरानी है, और वो कमर्शियल चीजों के लिए, जैसे आप एड शूट देखते हो, फिल्मी शॉट्स देखते हो, होर्डिंग्स पे बड़े बड़े आप कमर्शियल एड्स और शॉट्स देखते हो, वो हेजल ब्लेड कैमरा शूट करता है। टेक्निकल थिंग है वो, क्यों वो बहुत कॉस्टली आता है, इसकी स्टार्टिंग होती है 25 लाख से, बट बहुत गुड इनफ क्वालिटी वो हमको प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं उस फील्ड में होता तो मैं उसे जरूर परचेज करता। Thank you, sir. So, how do you think about lighting during your photos? Out of all your photos, which one is your favorite? बेसिकली वैसे तो मेरी सभी फेवरेट हैं, बट लाइटिंग जैसे मैं पहले भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी फेवरेट जो लाइट होती है वो होती है या तो अर्ली जो सनराइज होता है, और या फिर जब सन जा रहा होता है। तो ये जो दो लाइट्स होती हैं इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और उस समय जो हम फोटो क्लिक करते हैं वो हमारी फेवरेट होती है, मतलब मेरी बेस्ट होती है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे पीछे बालों पर लाइट आ रही होती है, आपने अगर कभी इस तरह की पिक्चर्स देखी हो, और हम लोग सिलहुट एक कंसेप्ट होता है कि पीछे ब्राइट है, एक डार्क में सिर्फ इमेजेस बन रही हैं, कुछ इस तरह की इमेजेस होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं चीजों को हमें जो पर्सनली फेवरेट अगर बात करेंगे तो बहुत पसंद है। Thank you, sir. Sir, do you have any closing thoughts regarding the session?
इन क्लोजिंग थॉट बस यही है कि आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, आप लोगों को कहीं ना कहीं फोटोग्राफी एज कैरियर पसंद है, तो हम यही चाहेंगे कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें तभी एंटर करना चाहिए जब आपको इंटरेस्ट हो। वैसे तो ये किसी भी चीज में यही होना चाहिए कि इंटरेस्ट है तो एंटर करें, लेकिन फोटोग्राफी पर्सनली ऐसी चीज है कि जब तक आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं हो तब तक आप इसमें एंटर नहीं करो। आप इसके आउटकम या इसके ग्लैमर या इसमें किसी भी नहीं फंस के एंटर करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, लोग गलती कर देते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो वो इसके ग्लैमर में आकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसमें एंटर कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तभी करना चाहिए जब पर्सनली आपको कैमरा क्लिकिंग और कैमरा फोटोग्राफी और ये सब चीजें करना पसंद हो, आपको क्रिएटिव शॉट, आपको देखने में आपको एक अजीब सा इंस्पिरेशन मिलता हो क्लिक करने के बाद। आप फोटोशॉप पे आफ्टर प्रोसेसिंग करने जाते हो कंप्यूटर पे बैठ के, तो फोटो आप देख रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे हो। इस सॉरी अच्छा मैं म्यूट हो गया था। तो तभी इसको एज अ करियर या इस तरह से चीजों को लेना चाहिए और तभी इसमें एंटर करना चाहिए। अदरवाइज इसको सिर्फ शौक के लिए या वैसी चीजों के लिए रखें, इसको फिर करियर नहीं बनाए, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now we would like to read the questions from the chat box. Okay, where I found the chat box. So the first question is, what details do you believe make the best photographs, and how do you go about focusing on them in your work? डिटेल में मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो मेन चीज है, हर कैटेगरी का एक्चुअली में अलग अलग कंसेप्ट होता है। जब आप वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हो तो विजन एकदम डिफरेंट होता है। जब आप कमर्शियल की बात करते हो तो एकदम डिफरेंट विजन होता है। जब आप आर्टिस्टिक की बात करते हो तो डिफरेंट विजन हो जाता है। तो हर चीज में, फैशन फोटोग्राफी की बात करते हो तो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, सिनेमैटिक की बात करते हो तो डिफरेंट विजन हो जाता है। तो हर चीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग विजन होता है। जब आप बात करते हो डिटेलिंग की, तो अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं, इसको एज करियर लेते हैं इस फील्ड को, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल रखना होता है वो है एक्सप्रेशन। आप जो लोग हैं वहां पर, हम कहीं ना कहीं लोगों को शूट करने जा रहे हैं, तो आइडिया इज कि वो कैसे वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, उनके मूवमेंट, उनका वो मूड थ्रू लाइटिंग क्रिएट करना, वो चीजें जो वो कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो हमारा मिस नहीं हो। और ज्यादा से ज्यादा हमारा यही फोकस रहता है चीजों को एनहांस करने के लिए कि हम उसे अपनी कैप्चर थ्रू लेंसेज उनको वो मेमोरी क्रिएट करके दे पाए कि आप उस समय उस मोमेंट में क्या कर रहे थे। फिर वो कुछ भी कर रहे हो, वट एवर दे, उसमें आप कहीं ना कहीं डांसिंग है, आप इमोशनल हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप जैसे भी कर रहे हो, हमारे लेंसेज में वो सारी चीजें हमारे कैमरा में कैप्चर होनी चाहिए थ्रू गुड लाइटिंग, थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू विद गुड मूड। मूड आपका लाइटिंग से क्रिएट होता है, तो वो चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फोटोग्राफ में। बाकी कैटेगरी में बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो वेडिंग कि मैं आपको इतना बताया है मैंने, और किसी कैटेगरी में भी आप जानना चाहोगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। Thank you, sir. So which photographers influenced you, and how did they influence your thinking, photographing and career path? एक्चुअली मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, मतलब एक्चुअली मैं बहुत छोटी सी उम्र से काम कर रहा हूँ यही फोटोग्राफी का। तो दैट्स वाई कि मेरा जो भी चीजें हैं, कंपटीशन है, मैं हमेशा खुद से ही करता हूँ। मैंने लास्ट काम क्या अच्छा किया है, अगले काम में मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि उससे बेहतर करके दूं। तो ऐसे मुझे कोई फोटोग्राफर इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ना मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ। हाँ, सब लोग अच्छा काम करते हैं, मैं अपना अच्छा और बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। Thank you so much, sir. Okay. So what technology or software do you use to keep focused on what do you do best as your photograph? इसके तो देखिए, बेस्ट ये है कि जो भी आपका अपडेट आता रहता है फील्ड में, हमारी फोटोग्राफी में, जैसे पहले हम लोग का DSLR चलता था, तो
आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो हाँ, आप सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा ये अभी ये आपने जो क्वेश्चन करा था, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ कि जो अब हमारे फील्ड में, जैसे अभी तक मैंने कैनन कंपनी आपसे बोला, वो DSLR एक मॉडल होता था, उस पर चलते थे। अब क्या हुआ, अभी जो नया टेक्नोलॉजी है वो है मिररलेस। उसमें मतलब वो भी टेक्निकल टर्म है, जब मैं समझाऊंगा आपको, तो वो हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर है। तो जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब बेस्ट करना चाहते हो, तो वैसे तो आपकी क्रिएटिविटी में आपके जो इक्विपमेंट है वो आपको कभी भी रोकते नहीं है, बट जब आप अपडेट रहते हो तो थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है और चीजें आसान हो जाती है। तो आप अपडेटेड रहोगे तो अभी जो SLT टेक्नोलॉजी है नई मिररलेस, उसे अडॉप्ट करने का हमारा चल रहा है प्रोसेस, हम उसे अडॉप्ट करने वाले हैं। Thank you, sir. So, what is the difference between JPG and RAW? RAW is a टेक्निकल टर्म में हम उसे बोलेंगे कि उसमें इमेज क्लिक करी, तो वो जो एक इमेज है वो इमेजेस में हम कई लेयर्स आई थिंक आप अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं, मल्टीपल लेयर्स होती है। और Yes, sir. JPEG में क्या होता है कि वो कंप्रेस फॉर्म है, वो उन सारी लेयर्स को आपस में मर्ज कर देता है। जैसे हम अगर आपको एग्जांपल दें तो क्या है, जैसे आपने 4 वाइट पेपर है और वो बैक टू बैक वाइट पेपर लगाए हुए हैं और हर पेपर में एक फोटो एक्सपोज्ड है, ठीक। तो आप जब वर्किंग करोगे उन चारों पेपर पे अलग अलग वर्किंग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप हर पेपर पे जब अलग वर्किंग करोगे तो आपकी जो इमेज बनेगी वो ज्यादा बेहतर बनेगी। और अभी हम आपको जब एक पेपर दें और उस पर एक इमेज पहले से पूरी बनी हुई है और हम आपसे बोले कि इसका जरा आप ऐसा करो कि केवल फेस इनहांस कर दो, इसका आप केवल ड्रेस इनहांस कर दो या वैसे कर दो, तो आप अलग अलग लेयर पे काम नहीं कर पाते हो। तो इसलिए रॉ फॉर्मेट हमेशा बेटर होता है और रॉ फॉर्मेट पे ही शूट करना चाहिए ताकि हम ज्यादा डिटेल्स निकाल पाए फोटोग्राफ्स। Thank you, sir. So, the next question is, what were the challenges that you most commonly faced and how did you deal with them? ऐसे तो कोई भी चैलेंजेस नहीं होते हैं, बट आप अपनी फील्ड में हो तो कंपटीशन इज अ गुड थिंग और वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो वो कंपटीशन इस तरह से आता है कि कभी भी रेट्स वगैरह में या चीजों में इन टर्म्स ऑफ आपका क्या चार्जेस है, दूसरे चार्जेस शायद कम कर रहे हैं, तो वो आपकी, क्योंकि ये फील्ड जो है वो क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपके कभी भी कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किल और अपनी क्वालिटी को कितना एनहांस कर रखा है। जितना ज्यादा आप एनहांस कर लेते हैं, जितना गुड क्वालिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं चार्जेस ले सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन होता है जो हम लोग फेस करते हैं और वो ऐसा है कि हम उससे डील करके अपनी क्वालिटी को जितना एनहांस करेंगे उतना वो कंपटीशन खत्म होता जाता है। Thank you, sir. Sir, if you were to give advice to students about how to become a photographer, what would you say? मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल बनो, लेकिन तभी बनो जब आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। अगर आप फोटोग्राफी को एंजॉय करते हो, आप डीप इनसाइड उस चीज को चाहते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, फिर वो चाहे मोबाइल से क्लिक कर रहे हो या कैमरा से क्लिक कर रहे हो या कंप्यूटर पे बैठ के आप कोई पिक्चर देख रहे हो, किसी की भी फोटोग्राफ देख रहे हो, अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हो, आप उसकी डेप्थ में जा रहे हो उस इमेज की कि ये इमेज कैसे ली होगी, ये इमेज इस तरह की आपकी थॉट प्रोसेस चल रही है उस इमेज को देखते समय कि ये कैसे इमेज ली होगी, ये कैसे कैप्चर किया होगा, इसमें ये डिटेल कैसे आए होंगे, ये कैसे इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, कैसे ये इमेज अच्छी लग रही है देखने में, क्यों ये हमें एंजॉय करा रही है। तो जब इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, दैट मीन्स कि आप फोटोग्राफर बन सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप में वो पेशेंस है कि आप में इंटरेस्ट है, आप फोटोग्राफी फील्ड में बिल्कुल जाओ। अगर ये सब नहीं है, एज हॉबी है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल जैसे सबको लगता है वैसे ही आपको भी लग रहा है, तो इसे एज प्रोफेशन नहीं चुने, क्योंकि फिर इसमें आप जब जाओगे तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है जो लोगों में नहीं होता है। तो लोग कई साल देने के बाद फिर उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। Thank you, sir. Now it's time for some fun element. It's quiz time.
Students will get 10 seconds for each question and they are requested to write their answers in the chat box. So the first question is, Kodak camera was invented by, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the right answer is option C, given by no one. So the next question is, a digital image is made up of thousands of, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option A, given by Pranavi Gupta. So the next question is, what is backlighting? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option C, given by no one, given by Deepika. So the next question is, when was the first ever color photograph taken? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option A, given by Sanvi Omar. So the next question is, the world's first photographic portrait studio was opened in, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option B, given by Pranavi Gupta. So the next question is, who coined the term photography? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option D, given by no one. So the next question is, what is a magic lantern? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option B, given by no one. So the next question is, the dash is used to trim images, and your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option D, given by Hanzala. So the next question is, who took the first portrait?
It happened to be a selfie. And the options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option C, given by Deepika. So the next question is, who took the first photo of a person? And your options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option A, given by Pranavi Gupta. So the next question is, where was the first photo of a person taken? And the options are 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And the correct answer is option C, given by no one. Many congratulations to all the winners. Please give clap reaction to all the participants. Thank you so much, sir. We have got so inspired to see your passion towards your work, and I'm sure everyone must have been amazed to get to know more about your inspiring journey. A heartfelt gratitude to our founder and CEO, Mrs. Preeti Agarwal, for initiating such talks, which kindles in us the curiosity to explore more. We convey our heartfelt gratitude to our guest speaker, Mr. Ankit Shukla, for the dynamic talk. Your feedbacks and suggestion is the most important for us, for raising the bar all the time. WhatsApp class group will remain open till 5:30 p.m. Parents and students are requested to share their feedbacks and suggestions in the class group. Thank you so much, everyone, to be a part of this Billabong Inspires Talk series. We will meet tomorrow on 19th December 2021 at the same time with our next guest speaker. Thank you.